students, let's begin with our new chapter, that is the Rat Trap. Rat Trap by Selma Lagerlöf. So let's find out something about the author. Selma Lagerlöf was a Swedish writer and whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. This story is set amidst mines, Sweden rich in iron ore, which figure large in history and legends of that country. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. So, Selma Ottilia Lovis Lagerlöf was a Swedish writer. In 1909, she became the first woman to ever receive the Nobel Prize in Literature in appreciation of the lofty idealism, vivid imagination and spiritual perception that characterize her writings. She later also became the first female member of the Swedish Academy. Let's find out more about the theme of the chapter. Here you can see her date of birth, 20th November 1858, 16th March 1940. The theme of the story is, the story upholds the belief that the essential goodness of a human being can be awakened through love and understanding. कहते हैं कि अगर हम humanity किसी के अंदर generate करना चाहते हैं, even a bad person can be converted into a good person with the help of goodness. If you are humble and humane to even bad people, we can convert, we can transform them from bad person or bad personality to good personality. This is the theme of this particular chapter, and it brings into focus the idea that the world is a rat trap. Riches, joys, shelter and food are all lucrative baits to trap mankind. So वो बताता है कि जो भी हमारे आसपास सुंदर चीज़ें हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, चीज़ें जो हम यर्न करते हैं, जो हमें चाहिए, वो सब एक तरीके से बेट की तरह काम करती हैं. जैसे अगर हम रैट ट्रैप की बात करें तो रैट ट्रैप का क्या पर्पस होता है, उसमें हम चीज़ लगाते हैं और उसमें जो है रैट फंस जाते हैं. और इसी तरीके से ये सुंदर चीज़ें हम सब ह्यूमन बींग्स को अट्रैक्ट करती हैं और ये पूरा वर्ल्ड रैट ट्रैप की तरह है. और इसमें जो है इन चीज़ों की तरफ जो अट्रैक्ट हो जाता है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, वो इस रैट ट्रैप में फंस जाता है. जैसे कि इस कहानी का जो पेडलर था उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ. So let's find out more about the title. The rat trap is a metaphor to highlight the human predicament. Just as a rat is fooled by a bait and gets trapped, most human beings are likely to fall into the trap of material benefits. This I have just now explained. And setting in this story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history of that country, and the story is told somewhat in the manner of a fairy tale. So let's find out this fairy tale. The major characters in the story are a peddler with rat traps, an old man, they call him a crofter, then master smith in the Ramsjö iron mill in Sweden, helpers in the mill, that is blacksmiths, iron mill owner Edla Wilmundsen, daughter of the iron mill owner. So let's begin with our chapter. We have read a lot about the author, so we'll start with the chapter straight away. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or all the big farms. But even so, the business was not the pretty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes. जो इस स्टोरी का मेन करेक्टर है वो है पेडलर, और उसका जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग था वो रैट ट्रैप बनाता था. जो चीज़ें जो हैं या तो वो भीख में या बैग कर या फिर उसको छोटी छोटी चोरियां कर जो उसे चीज़ें मिलती थी उससे वो रैट ट्रैप बनाता था. और अगर हम उसकी फ़िज़िकल कंडीशन की बात करें तो उसके कपड़े बिल्कुल फटे हुए थे बहुत जगहों से, और उसकी चीक्स जो है वो संकन थी. जैसे अगर आपको खाने पीने को ठीक से नहीं मिलता है तो आप मैल नॉरिश्ड हो जाते हो, आपका
का चेहरा जो है वो डल हो जाता है। ऐसे ही अगर आप किसी गरीब को देखें या बेगर को देखें तो आप देखेंगे कि उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल डल है, उसके चीक्स जो हैं वो बिल्कुल अंदर धंसे हुए हैं और आँखों में चमक नहीं है, आँखों में सिर्फ भूख होती है, उनको कुछ खाने पीने की चीज़ें जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड का मतलब है जो पर्सन इधर उधर घूमता है एमलेसली, उसको वैगाबॉन्ड बोलते हैं। और जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है पेडलर, वो वैगाबॉन्ड है और लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। एंड हु पॉज अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, बट वन डे this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining, and he had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world was its land and seas and its cities and villages, was nothing but a big rat trap. अब ये वैगाबॉन्ड जो है इसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस थी और सडनली इसके माइंड में एक थॉट आया और वो थॉट उसको बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता था और वो थॉट वो बहुत ही ज़्यादा रेलिश करता था। और वो थॉट क्या था कि ये सारी दुनिया एक बड़ा रैट ट्रैप है और ये सुंदर सुंदर चीज़ें जो हैं, सुंदर सिटीज़, सीज़, विलेजेस और भी ब्यूटीफुल थिंग्स, ये एक तरीके से बेट का काम करती हैं जिसमें जो है ह्यूमंस, कुछ ह्यूमंस जो है वो उसमें फंस जाते हैं और कुछ उसके आसपास घूमते रहते हैं और वो नेक्स्ट हैं लाइन में उसमें फंसने के लिए। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर मैनी अदर पर्पस दैन टू सेट baits for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself to be tempted to touch the bait, it closed it in on him, and then everything came to an end. अब वो कहता है कि ये सारी चीज़ें जो है, ये riches, ये joys, ये shelter, ये food, ये heat, ये clothing, ये सब चीज़ें जो सुंदर चीज़ें हैं वो एक हमें जो है वो पीस देती हैं और हम रिलिश करते हैं, वो एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे रैट ट्रैप में पड़ा हुआ वो चीज़ जो रैट को अट्रैक्ट करता है। और जब उस चीज़ को खाने के लिए रैट अंदर जाता है तो वो पिंजरा बंद हो जाता है, उसी तरीके से वो ट्रैप बंद हो जाता है। वैसे ही ये सुंदर चीज़ें जब लोगों को अट्रैक्ट करती हैं और लोग उसको पाने के लिए जो है कोई भी मीन्स अपनाते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in his way. It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still सर्कलिंग अराउंड द बेट। वो कहता है कि ये पूरा वर्ल्ड जो है वो कभी भी किसी की तरफ काइंड नहीं होता और उसके तरफ तो बिल्कुल भी नहीं, उस दुनिया में कभी उसके साथ किसी ने कुछ काइंडनेस या लव या अफेक्शन नहीं शो किया। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, और वो इसीलिए दूसरों का बुरा सोच रहा था और इस चीज़ को जो है वो बहुत रेलिश करता था, बहुत चेरिश करता था और ये उसका फेवरेट पास टाइम बन गया था कि पूरी दुनिया वर्ल्ड एक बहुत बड़ा ट्रैप है और ये एग्जैक्टली उस रैट ट्रैप की तरह है। ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड let themselves be caught in the dangerous snare of others who were still circling around the bait। और वो कुछ जो है वो उसमें वो उन लोगों के बारे में सोचता था कैसे इस रैट ट्रैप में वो फंस गए और कुछ अभी उसके आसपास घूम रहे हैं। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. For nor was he refused. Instead, the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, as happy as to get someone to talk to in his loneliness, immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper.
Then he carved off such a big slice from the tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally, he got out an old pack of cards and played Majolus with his guests until bedtime. अब उस दिन एक क्रॉफ्टर का घर की बाहर जो है पेडलर ने नॉक नॉक किया। वो ग्रे कॉटेज था और उसका ध्यान जो है उस कॉटेज की तरफ गया और उसने उस वहाँ नॉक किया और उसके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था कि यूजुअली उसको जो है वो सार फेसेस लोग उसको देखकर खुश नहीं होते हैं और वो क्रॉफ्टर उसको देखकर इतना खुश हुआ, उसको इतना वेलकम किया। वो ओल्ड मैन वहाँ पर ना उसकी वाइफ थी, वाइफ जो है वो एक्सपायर हो गई थी, ना उसके साथ उसके बच्चे थे, तो ही वॉज टोटली लोनली। और वो इतना खुश था एक पर्सन को अपने घर में देखकर कि उसने उसकी किसी भी चीज़ को ध्यान ना देते हुए उसको वेलकम किया, उसको सपर दिया और उसको उसके साथ जो है अपना टोबैको रोल भी शेयर किया और साथ में जो है उसके साथ गेम भी खेला। और गेम में जो है वो एक गेम स्पेशलाइज है मजॉलिस और वो कार्ड गेम उसके साथ खेला और बेड टाइम तक उसके साथ जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही हॉस्पिटैलिटी से, बहुत ही अच्छाई से उसको जो है वो ट्रीट किया। तो वो उसके लिए वो बहुत ही सरप्राइजिंग था कि क्यों ये ओल्ड मैन जो है उसको इतना अच्छा ट्रीट कर रहा है, बट वो अंडरस्टैंड कर रहा था कि क्योंकि ये लोनली है। और ये एक और थीम को हाईलाइट करती है, लोनलीनेस को, ये पर्टिकुलर चैप्टर, कि कैसे जो है लोनली पीपल दे यर्न फॉर अदर पीपल्स कंपनी और वो इस चीज़ का ध्यान ही नहीं देते हैं कि कहीं वो गलती से ऐसा कोई पर्सन को तो एंटरटेन नहीं कर रहे हैं जो उनको चोट पहुंचा सकता है। और उनका जो लोनलीनेस है उसको दूर करने का जो दूर करने के लिए कोई भी आता है तो उसे वो वेलकम कर लेते हैं। और आप अपने ऐसे बहुत सारे आसपास के लोगों को देखते होंगे जो ओल्ड पीपल वो किसी से भी कुछ भी बात कर लेते हैं, कुछ भी सीक्रेट शेयर कर लेते हैं, जो कि इस क्रॉफ्टर ने भी किया। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter's Ramsjo ironworks and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that bossy was extraordinary. He could give milk for the creamery every day. And last month he had received all of 30 kroners in payment. अब वो ये सीक्रेट भी उसे बता रहा है कि बहुत ही ज़्यादा जेनरस है क्रॉफ्टर पेडलर के प्रति और उसको जो है पॉरिज दिया, टोबैको दिया और साथ साथ एक सीक्रेट भी शेयर किया। सीक्रेट क्या कि उसका जो अब मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है वो है मिल्किंग ऑफ काउ। अर्लियर ही यूज्ड टू वर्क इन आयरन मिल, रामशो आयरन वर्क, और अब जो है वो मिल्किंग ऑफ काउ से जो है वो अपनी अर्निंग को अर्न करता है और उसके पास 30 kroners हैं इन पेमेंट। और उसे ऐसा लगा कि जैसे वो स्ट्रेंजर उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहा है कि उसके पास 30 kroners हैं, तो द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो एंड टुक डाउन अ लेदर पाउच which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly. अब जब ये 30 kroners की सीक्रेट को उसको लगा कि नहीं वो विश्वास करेगा, तो फटाफट से उठ के गया और जो एक छोटे से पाउच में उसने हैंग किया हुआ था, एक कील के उस पर हैंग किया हुआ था ये पाउच, उस पाउच को निकाल कर लेकर आया, उसको 30 kroners दिखाए और वापस उसको 30 kroners को डालकर उस जगह पर हैंग कर दिया, ताकि उसको ये विश्वास हो जाए पेडलर को कि उसके पास 30 kroners है और वो मजाक नहीं कर रहा है। The next day both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat traps said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. अब
The next day both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow. और वो अगले दिन जो है जब सो के उठे तो क्रॉफ्टर को अपनी काऊ को मिल्क करने जाना था, तो वो जल्दी में उठा और इसके साथ साथ ही वो पेडलर भी उठा और उसको पेडलर को गुड बाय किया और वो अपना काऊ को मिल्क करने चला गया। कीज़ को उसने अपनी पॉकेट में रखा और गुड बाय करके वो अपने रास्ते चला गया, क्रॉफ्टर और पेडलर अपने रास्ते। बट पेडलर के मन में अब चोर आ गया था जो कि क्रॉफ्टर को नहीं समझ आया। और क्रॉफ्टर जो है इतना ज़्यादा उस पर जो है ओपनली ट्रस्ट करा और उसने दिखा दिया कि अब उसके मन में चोर आ गया और वो जो 30 क्रॉनर्स हैं बेट की तरह जो है वो काम करने लग गए इस क्रॉफ्टर के लिए, इस पेडलर के लिए। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगैन बिफोर द डोर. He did not try to get in, however. He only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroners. And he took the money and thrust it into his own pocket, and then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. अब जो पेडलर को पता था कि वो कहाँ टंगे हुए हैं पैसे, तो उसने उस विंडो के शीशे को तोड़ा और वहाँ से पैसे चुराए और उस पाउच को, खाली पाउच को उस नेल पर ही टांग कर अपने पैसे अपनी पॉकेट में डालकर आधे घंटे बाद वो उस जगह पर गया और उसने वो चुरा लिए। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, but must turn off the road into the woods. During the first hours, this caused him no difficulty. Later in the day it became worse, for it was big and confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood. अब क्रॉफ्टर ने जो है वो अपने रास्ते चला गया, उसे तो रियलाइज़ ही नहीं था कि उसके पैसे चोरी हो गए। और जब ये पेडलर उसके पैसे लेकर घर से निकला, उसने अपने पॉकेट में डाले, तो उसने पब्लिक पाथ जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पर उस रास्ते को अवॉइड किया और उसने अपना रास्ता जो है जंगल की तरफ मोड़ लिया, ताकि उसे किसी को, क्योंकि वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, किसी को नहीं पता कि उसने 30 क्रॉनर चुराए हैं, बट उसे खुद ये रियलाइजेशन था कि उसने चोरी की है, इसीलिए वो लोगों की नज़रों से बचना चाहता था और उसने अपना रास्ता जो है जंगल की तरफ ले लिया वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा लोग जो है रास्ते में नहीं मिलते और वो उस रास्ते पे चलता गया। बट आपको सबको पता है, आई डो नॉट नो कितने लोग आप लोग फॉरेस्ट गए हैं, बट फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। वहाँ पे ऐसा लगता है आप गोल गोल घूमते हो और जहाँ से शुरू होते हो वहीं आ जाते हो, आपको क्लियर रास्ते नहीं पता लगते हैं अनटिलनेस आप वहाँ के रहने वाले हो। तो वो तो वहाँ पर सडनली उस वुड्स की तरफ गया था, तो वो बहुत डर गया। वो चलता रहा, उसको सब चीज़ें कंफ्यूजिंग थी, वो उसको रास्ता नहीं समझ आ रहा था कहाँ निकल रहा है। और अब जो है उसको धीरे धीरे जैसे जैसे वो शाम होती चली जा रही थी तो उसकी हिम्मत भी जवाब देती जा रही थी और उसको डर लगने लग गया था, क्योंकि जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर भी होते हैं और अंधेरा हो रहा है और उसको बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो वो अपने अंदर, उसके अंदर जो वो डर बैठ गया था और अब उसे वो रियलाइज़ हुआ कि ये पूरी दुनिया वर्ल्ड ट्रैप है और बिल्कुल एग्जैक्टली उस रैट ट्रैप की तरह है और वो 30 क्रॉनर्स उसके लिए बेट की तरह काम कर गए और वो उस ट्रैप में अब फंस गया है और उसने अपनी सारी एनर्जी शाम तक आते आते खो दी। He had let himself be fooled by a bait and had been caught. The whole forest, with its trunks and branches, its thickest and fallen logs, closed in upon him like a impenetrable prison। और उसे लग रहा था कि वो प्रिजन में बंद हो गया है और ये बड़े बड़े पेड़ और लॉग्स एक तरीके से उसको ऐसा लग रहा था कि जेल के दरवाजे की तरह हैं जो कहीं खुलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और वो कहीं से एस्केप ही नहीं कर पा रहा है, वो उसमें फंस गया है, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, और उसमें वो कभी भी अब एस्केप नहीं कर पाएगा। It was late in December. Darkness was already descending over the forest, and this increased the danger and increased
ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। और दिसंबर का टाइम था, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और अंधेरा जो है वो हो गया था, और वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर डरा हुआ फील कर रहा था, और वो बिल्कुल ही उदास हो गया था और निराश हो गया था। फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। और वो घबरा गया, डर गया, और डर के मारे वो ज़मीन पर ही जहाँ था वहीं बैठ गया, टायर्ड टू डेथ। और इतना ज़्यादा थक गया था, उसको बस मरने वाली हालत सा लग रहा था अंदर से। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। और उसके मन में लग रहा था अब उसके जो है आखिरी टाइम आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग. There was no doubt as to what that was, and he raised himself. Those are the hammer strokes from the iron mill, he thought. There must be people nearby. He summoned all the strength, got up and staggered in the direction of the sound. और ये जो है जैसे ही वो ज़मीन पे बैठा और उसे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी का अंत आ गया है, तो उसको कहीं से थम्पिंग साउंड सुनाई दी। जैसे आप अगर हथौड़ा जैसे अगर कोई जोर जोर की मार रहा है तो जो आवाज़ आती है, तो उसको थोड़ा सा हो पाई, कहीं से उसको कुछ आवाज़ आ रही है और उसको समझ आया ये हैमर स्ट्रोक जो है वो आयरन मिल से आ रही हैं। और फिर उसको लगा कि वहाँ पे डेफिनेटली अगर ये थम्पिंग साउंड्स हैं तो कोई ना कोई तो उसे वहाँ आयरन मिल में मिल ही जाएगा। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय। और उसने अपनी आत्मशक्ति को वापस जो है कॉल किया, अपनी स्ट्रेंथ को उसने समन किया, एंड ही गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। स्टैगर्ड मतलब वो सीधा नहीं चल पा रहा था, घिसट घिसट कर, क्योंकि अब वो इतने सुबह से चल रहा था, शाम हो गई थी, तो अब उसकी पाँव में भी जान नहीं थी, तो वो अपने आप को घसीटता हुआ उस आवाज़ की तरफ जो है वो ले जाने लगा। द राम्सजो आयरन वर्क्स विच आर now closed down were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. और ये पुरानी राम्सजो आयरन मिल है, और उसको जो है बहुत अरसा नहीं हुआ कि वो बिल्कुल ही क्लोज डाउन होगी, उसमें अभी भी काम हो रहा है, और विंटर का टाइम है, ये मिल अभी भी चल रही है। उसमें कुछ लोग जो हैं चारकोल से जो है काम कर रहे हैं, आयरन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ड्यूरिंग one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace. अब ये लॉन्ग डार्क इवनिंग है और क्रिसमस का टाइम नियर है, और मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर जो है उस आयरन मिल में काम कर रहा है, और बहुत ही डार्क है, बहुत ही स्मॉग है, और वहाँ पे फर्नेस बहुत ही ज़्यादा हीटेड है। Furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. Every now and then one of them got up in a few moments, dripping with perspiration. और बहुत ही पसीने पसीने हुए हुए हैं बोथ मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर, और वो अपने काम में जो है बहुत ही ज़्यादा सिंसियरिटी से जो है वो एक बार मास्टर स्मिथ जो है हिलाता है, दूसरी बार उसका हेल्पर हिलाता है। Glowing, every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments dripping with perspiration. और वापस जब आते हैं तो बिल्कुल पसीना पसीना। Though as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. और उसने वहाँ पर आयरन मिल में इतनी गर्मी है कि उसने सिर्फ एक शर्ट पहनी है और वुडन शूज़ पहने हैं, ताकि वो जो गर्मी है, अगर वो दूसरी चप्पल पहनता है तो उससे उसका पाँव भी जलेगा, तो उसने वुडन स्लिपर्स पहनी है। ऑल द टाइम देयर वर मेनी sounds to be heard in the forge, and the big bellows groaned and the burning coal cracked. The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall, and a sharp north wind whipped the rain against the brick
tiled roof. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of the light which escaped attracted to the forge by the glow of light, I am repeating it, the sooty panes, and to come to a warm themselves in front of the fire. अब वो जो पेडलर है उस जगह पर पहुंच गया जहाँ पर ये ब्लैकस्मिथ और उसका हेल्पर जो है वो काम कर रहे थे, और कब वो गेट खोलकर अंदर आ गया और वो बिल्कुल फर्नेस के बिल्कुल पास आ गया, तो उसकी तरफ उस ब्लैकस्मिथ ने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज्ड टू है इस तरीके से। बहुत बार लोग जो हैं जो जंगल में भटक जाते हैं या आसपास होते हैं गर्मी के लिए या फिर शेल्टर के लिए उस जगह पर आ जाते हैं, तो उसने बिल्कुल लीस्ट बॉदर्ड था। उस तरीके के वैगाबॉन्ड जो है एमलेसली इधर उधर घूमते हैं, वो आ ही जाते हैं उस अपने आप को गर्माहट देने के लिए। द ब्लैकस्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली, और उसने बहुत ही ऐसे ही बेपरवाही से उसकी तरफ देखा और कुछ उसके बारे में उससे पूछा नहीं, जबकि वो इंट्रूडर था, वो उनकी बिना परमिशन के वहाँ पर आया था। ही लुक द वे पीपल of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest। और वो जो है उसने कपड़े जो है फटे हुए पहने हुए थे, दाढ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी और उसके कंधे पे जो है bunch of rat traps जो है वो टंगे हुए थे। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word। और जब उसने परमिशन मांगी वहाँ रहने के लिए वैगाबॉन्ड ने, रैट ट्रैप ने, पेडलर ने तो उसने बस गर्दन हिलाकर ब्लैकस्मिथ ने उसको परमिशन दे दी। उसने अपने मुंह से एक शब्द भी बोलने की ज़रूरत नहीं समझी, वो अपने काम में इतना मशरूफ़ था। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, ईदर ही हैड नॉट कम here to talk but only to warm himself and sleep. In those days, the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, and he watched both night and day to see that the work was done as well as possible। और जो उस जगह का मालिक था, उस आयरन मिल का मालिक था आयरन मास्टर, वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस था और बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी को जो है वो प्रायोरिटी देता था। तो इसीलिए वो कभी भी किसी भी मोमेंट अपना जो है क्वालिटी चेक करने के लिए वो ना दिन देखता था ना रात, और ज़्यादातर जो है नाइटली राउंड्स पे आता था कि वो लोग जो है वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आयरन मिल में। तो अपनी उस इंस्पेक्शन को जो है अपना जारी करते हुए वो इंस्पेक्शन करने आया, और उस दिन भी वो उसी तरीके से जैसे सरप्राइज़ चेक था, उस सरप्राइज़ चेक की तरह ही नाइटली राउंड्स पे आया। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way too close to the furnace that steam rose from his wet rags. The iron master did not follow the example of the blacksmith, who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close to him, looked him over very carefully, and then tore off his slouch hat to get a better view of his face. But of course it is you, Neil Zoloff, he said. How do you look? अब जैसे ब्लैकस्मिथ ने लीस्ट कंसर्न शो किया उस रैट ट्रैप, उस पेडलर को देखकर, उस ट्रैप को देखकर, आयरन मिल के मालिक ने वैसा नहीं किया। जैसे ही वो अंदर एंटर किया तो उसका सीधा ध्यान जो है उस स्ट्रेंजर की तरफ, उस इंट्रूडर की तरफ ही गया, और वो बहुत पास जाकर उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखता है और उसे मिस इंटरप्रेट करता है नील ज़ोलॉफ की जगह। उसे लगता है कि शायद वो उसे जानता है और उसका नाम नील ज़ोलॉफ है, क्योंकि उसको लगा कि उसका चेहरा जो है नील ज़ोलॉफ से मिलता है, और उसको कह रहा है कि क्या कर रही है तुमने अपना। द मैन विद द रैट ट्रैप्स had never before seen the iron master at Ramsjo and did not even know what his name was, but it occurred to him that if
The fine gentleman thought he was an old acquaintance. He might perhaps throw him a couple of kroners. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. और उस ट्रैम्प ने, उस वेगाबॉन्ड ने कभी भी जो आयरन मिल का मालिक है उसे नहीं देखा था, और वो एकदम से उसने डिनाई भी नहीं किया. उसे लग रहा था कि ठीक है, अगर ये मुझे कोई समझ रहा है तो कोई बात नहीं है, अपना ओल्ड एक्वेंटेंस, ओल्ड जानकार समझ रहा है तो कोई बात नहीं है. तो उसने टोटली डिनाई नहीं किया और अपनी उस आइडेंटिटी को जो है उसने डिस्क्लोज़ नहीं किया कि मैं नील्स ओलॉफ नहीं हूँ. वो उसकी बात ही सुनता रहा. येस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड. और उसने कहा कि हाँ, मेरा जो है ये हाल जो है अच्छा इसलिए नहीं है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है लाइफ में और मेरी किस्मत ख़राब है. यू शुड नॉट हैव रिज़ाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट. और रिटर्न में जो है आयरन मास्टर उसे बोलता है कि तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था. सेड द आयरन मास्टर, एंड दैट वाज द मिस्टेक. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. वो कहता है कि अगर तुमने वो रेजिमेंट नहीं छोड़ा होता तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता और तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहिए था. लेकिन अब जो है तुम मेरे साथ मेरे घर आ रहे हो. To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regiment comrade. That however did not please the tramp. और वो सोचने लगा कि इस मैनोर के हाउस में मैं जाऊं और जो कि ओल्ड आर्मी ऑफिसर रह चुका है और रेजिमेंट में रह चुका है, कॉमरेड है, मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा. नो, आई couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. He thought of the 30 kroners. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lions den. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as इनकॉन्स्पिक्यसली एज पॉसिबल. अब वो चाह रहा था कि बस कुछ टाइम उसको बस यहाँ पे रात को सोने को मिल जाए और वो सुबह चुपचाप निकल जाएगा. और 30 kroners, उसको तो मालूम है कि उसने 30 kroners चुराए हैं और वो चोर है, और उस 30 kroners के साथ वो उस रेजिमेंट के ऑफिसर के घर चला जाए, ये तो कहीं की समझदारी है ही नहीं. वो नहीं जाना चाहता था उस मैनर हाउस और उसने टोटली डिनाई कर दिया कि नो नो, आई कुडंट. The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. और उसको ऐसा लगा आयरन मास्टर को कि क्योंकि उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने, उसके जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए वो उसके साथ उसके घर नहीं आना चाहता. प्लीज़ डोंट थिंक that I have such a fine home that you cannot show yourself there. और वो उसे कह रहे कि कहीं तुम ऐसा मत सोचो कि मेरा बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा महल टाइप घर है और तुम जो है वहाँ पर आकर जो है नहीं रह सकते, ऐसा कुछ नहीं है. He said, Elizabeth is dead, as you may already have heard. My boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself. We are just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. और वो मजाक करते हुए बोल रहा है, वो बता रहा है कि तुम्हें पता ही होगा कि मेरी वाइफ जो है वो है नहीं, मर गई है, और मेरे बच्चे जो हैं वो अब्रॉड चले गए हैं, और मैं और मेरी ओल्डेस्ट डॉटर एडला जो है वहाँ पर रह रहे हैं, उस घर में रह रहे हैं, और हमारे पास क्रिसमस साथ में सेलिब्रेट करने के लिए कोई गेस्ट नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि तुम एज अ गेस्ट हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करो और वो अच्छा अच्छा खाना जल्दी से ख़त्म करो, जल्दी से फिनिश करो हमारे साथ उस फीस्ट को, क्रिसमस की फीस्ट को. But the stranger said no and no again and no, and the iron master saw that he must give in. अब आयरन मास्टर को इतनी बार उसने मना किया कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता, तो अब आयरन मास्टर को भी थोड़ा सा गिव अप करना पड़ गया कि ठीक है, अब वो नहीं आना चाहता तो अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता. इट लुक्स एज दो कैप्टन wants prefer to stay with you tonight, Stegerstrom, he said.
to the master blacksmith and turned on his heel. और उस blacksmith को की तरफ देख के कहता है कि ये stranger मुझे लगता है कि उसे तुम्हारी कंपनी ज़्यादा पसंद है और वो तुम्हारे साथ यहाँ रात बिताना चाहता है. But he laughed to himself, और अपने आप हंसने लग गया इस बात को बोलने के बाद. And he went away. And the blacksmith, who know him, understood very well that he had not said his last word. और ब्लैकस्मिथ जो है वो बहुत अच्छे से जानता था अपने मास्टर को, और उसे समझ आ गया था कि उसके मास्टर ने गिव अप नहीं किया है, कि अगर उसने मना कर दिया है उनके साथ जाने के लिए उस ट्रैम्प ने, तो वो मना होने के बावजूद वो गिव अप नहीं करेगा, और वो डेफिनेटली दोबारा आएगा या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन करेगा कि वो इस स्ट्रेंजर को अपने साथ लेकर जाए. और वही हुआ. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in. But this time it was the iron master. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. He entered, followed by a valet, carrying on his arm a big fur coat, and she was not at all pretty but seemed modest and quite shy. अब थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद जो है, एक घोड़ा गाड़ी कैरेज आकर बाहर जो है वो रुकी, और कैरेज ऑन द व्हील्स आई गेस, और आकर बाहर रुकी उस फॉर्ज के बाहर, और उसमें से जो है एक नया गेस्ट अंदर आया, और वो है एडला विल्मनसन, जो कि राम्सजो मिल के आयरन मिल की डॉटर है. वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है, बट मॉडेस्ट है और शाई है. और अपने साथ वो जो वॉले लाए है वो जो है कुछ फर कोट कैरी करके साथ आया है. In the forge everything was just as it had been earlier in the evening. और फॉर्ज में ऐसा कुछ बदला नहीं था, जैसे वो शाम को दिख रही थी वैसी की वैसी ही है. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head, and his hat pulled down over his eyes. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. The man was evidently used to sleeping with an eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. अब जो वो पेडलर है वो यूज टू था अपनी एक आँख खोल के सोने के, क्योंकि उसको हमेशा डर ही रहता था कि कोई उसे पकड़ ना ले या उसे वहाँ से उठने को ना बोल दे. जहाँ पे भी जगह दिखता था वो लेट जाता था या सो जाता था. तो वो यूज टू था, वो लोगों से डरता था क्योंकि उसकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी. कोई उसे थीफ समझता था और कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं देता था, तो एक आँख खोल कर ही सोता था. और एडला ने जाके सीधा उसकी जो है हैट को जो है पुल किया, और वो एकदम से जंप कर जो है वो खड़ा हो गया डर के मारे. My name is Edla Wilmanson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked the permission to come and bring you home to us, and I'm so sorry, Captain, that you are हैविंग सच अ हार्ड टाइम. और वो उसके फादर ने जाकर अपनी डॉटर को बताया होगा कि नील ओलॉफ उसका कोई ओल्ड रेजिमेंट से जो है वो उस आयरन मिल में रह रहा है. मैंने उसे बोला आने को, बट उसने मना कर दिया. तो मैंने अपने फादर को बोला कि कोई बात नहीं, आपको मना कर दिया है, बट आई विल ब्रिंग दैट कैप्टन. और कैप्टन, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि आपकी जो है हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है और आप बहुत ही मुश्किल दौर से जो है आपकी लाइफ जो है वो इतनी टफ़ चल रही है इस टाइम पे. सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. एंड शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, और बहुत ही ध्यान से और सॉफ्ट उसने जो है उसको देखा जब ट्रैम्प को, तो विद हर हैवी आइज. एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड ईदर he has stolen something or else he has escaped from the jail. और वो जैसे उसने देखा तो उसको उस ट्रैम्प की आंखों में डर नज़र आया, जैसे कि उसने कोई चीज़ चोरी करी है या अपना जेल से एस्केप हुआ है. एंड शी थॉट and it quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us
just as freely as you came, and only प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस। अब देखिए डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब ब्लैक स्मिथ ने देखा उसने लीस्ट कंसर्न शो किया, जब आयरन मास्टर आया तो उसने उसको इग्नोर नहीं किया, वो स्ट्रेट अवे उसके पास गया और उसको मिस इंटरप्रेट किया अपने कोई ओल्ड एक्वेंटेंस के जैसे। और अगर अब एडला की अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो उसको जो है वो कहीं से भी कैप्टन नहीं लग रहा था, उसकी कंडीशन से, उसकी पहनावे से, इवन उसकी आंखों का डर भी उसने पकड़ लिया था कि ऐसा लग रहा था कि उसको कोई चोर है या जेल से भागा हुआ है। बट उसने ये बात उसको शो नहीं करी, बट उसकी ऑब्जर्वेशन अपने फादर से जो है वो बेटर थी। शी सेड दैट दिस इन सच अ फ्रेंडली वे, और वो चाह रही थी कि वो क्रिसमस, और उसको सीधा उसने कहा कि हमारा जो है क्रिसमस ईव मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ आओ और साथ ही बिताओ, वो सेलिब्रेट करो। तो उतने प्यार से उसकी बात करने में इतना कन्विंसिंग था, इतने फ्रेंडली वे से बोला उसने कि रैट ट्रैप पेडलर जो है वो मान गया और उसने उसके साथ चलने के लिए राज़ी हो गया। एंड इट वुड नेवर हैव अकर टू मी दैट यू वुड bother with me yourself miss, he said, I will come at once। और वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको बॉदर करूँगा, और ठीक है मैं अब आपके साथ चलता हूँ। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags। और वो जो फ़र कोट है जो उसका ड्राइवर या वॉले लेकर आया था वो उसने पहन लिया, एक्सेप्ट कर लिया और अपनी उन रैग्स कपड़ों के ऊपर जो है उसे लपेट लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज विदाउट ग्रांटिंग द एस्टॉनिश्ड blacksmith as much as a glance। But while he was riding up to the manor house he had evil forebodings। अब वो जो है उसने एडला के कहने पर मान तो गया, अब लेकिन अब उसे डर लग गया अंदर से कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे से गलत हो गया है और मैं क्यों जो है इस लेडी के साथ जा रहा हूँ। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी। और अपने आप को कर्स कर रहा है कि ये सिर्फ मैं इस सिचुएशन में उस क्रॉफ्टर के मनी को चुराने की वजह से इस सिचुएशन में फंसा हूँ, मैंने क्यों चोरी की है उसके। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। और उसे लग गया कि अब वो जो है उस ट्रैप में फंस गया है और अब इससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। द नेक्स्ट डे was Christmas Eve, and when the iron master came into the dining room for breakfast he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. First of all we must see it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps। अब वो कह रहा है कि अपनी बेटी से बात करते करते कहता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है इसे अच्छा खिलाएं पिलाएं और थोड़ा सा ये वेट पुट ऑन करें, इसको बॉडी को फ्लैश मिले, सिर्फ बोन्स ही बोन्स हैं, और उसके बाद हम इसकी लाइफ में जो है कुछ प्रोफेशनल चेंजेस भी लाएं ताकि वो इस तरीके से सिर्फ रैट ट्रैप को सेल कर कर जो है वो नहीं बिताए अपनी ज़िंदगी और इससे बेटर लाइफ जो है वो जी सके। और एडला इस टाइम पे डाइनिंग टेबल पे अपना खाना बना रही है और वो क्रिसमस ईव है। इट इज़ queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had even been a educated man। अब एडला की ऑब्जर्वेशन देखो, अपने फादर को कह रही है कि मुझे तो कहीं से भी नहीं लगा कि ये कहीं से पढ़ा लिखा इंसान है, कुछ भी ऐसा एजुकेटेड बिहेवियर जो है, सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर जो है मुझे नहीं लगा इस पर्सन में। आपको मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों जो है ये कैप्टन लग रहा है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। फादर उसे कहते हैं कि बी पेशेंट। एज सून एज he gets clean and dressed up, you will see something different। Last night he was naturally embarrassed, the tramp manners will fall away from him with the tramp clothes। और वो कहता है कि जिस तरीके से उसने बहुत ही ख़राब कपड़े पहने हुए थे तो वो उस सिचुएशन, उसकी लाइफ ही इतनी ज़्यादा टफ चल रही थी कि वो इस सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं था। और जैसे जब इसके वो ख़राब कपड़े
उतर जाएंगे और उसका ऐसे ही एटीट्यूड भी जो है वो अच्छा एटीट्यूड जो है वो अच्छा पर्सनालिटी उसकी उभर कर बाहर आएगी। उसके कपड़ों के साथ साथ उसकी पर्सनालिटी भी चेंज हो जाएगी। आप वेट करो, उसको वेल ग्रूम होने का टाइम दो और वो अपनी उस वो लाइफ को श्रेड करने में उसके लिए जो है थोड़ा सा उसको टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना एम्बैरस था हम सबको रात को देखकर, क्योंकि अननोन मिले या फिर कोई नोन मिले तो फिर फ़र्क होता है। अभी अननोन मिल रहा है तो उसको ट्रैम्प को अपनी लाइफ में इतना नहीं फ़र्क पड़ा, लेकिन हम अब उसे नोन मिल गया तो इसलिए वो एम्बैरस फील कर रहा है। वो अपनी डॉटर को ये बात कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। यस, नाउ he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. Moreover, he was dressed in a good looking suit of clothes which belonged to the iron master, and he wore a white shirt and a starched collar, होल शूज़। अब जो है वो पेडलर जो है वो वेल ग्रूम्ड होकर उनके सामने आ गया है। उसने साफ़ कपड़े पहने हुए हैं, जो कि वॉले ने उसको अच्छे से नहलाया धुलाया, उसके हेयर कट किए, उसको शेव किया और उसकी पर्सनालिटी जो है वो काफ़ी डिफरेंट लग रही है। और जो उसने सूट पहना है वो आयरन मास्टर का सूट है। बट although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to make him for an old acquaintance. What does this mean? He thundered. The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge, but no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. अब जब वो ग्रूम्ड होकर आयरन मास्टर के सामने आया तो आयरन मास्टर तो बिल्कुल भी खुश नहीं था उसको देखकर, क्योंकि जब वो वेल ग्रूम्ड होकर उसके सामने आया तो उसको जो है समझ आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो जो पर्सन है वो नील ओलॉफ नहीं है, नील ओलॉफ नहीं है। और फिर जब रैट ट्रैप ने भी इस बात को डिनाई नहीं किया, उस ट्रैम्प ने भी उसको डिनाई नहीं किया, उसको समझ आ गया कि वो स्ट्रेंजर है और उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें कहा ही नहीं था कि मैं जो है नील ओलॉफ हूँ। मैं तुम्हें प्लीड कर रहा था, बेग कर रहा था कि मुझे वहीं पर ही रहने दो रात में उसी आयरन मिल में, बट तुम मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए हो। बट उसने कहा कि अगर तुमने ये नहीं कहा कि तुम वहीं रहना चाहते, बट तुमने डिनाई भी नहीं किया कि तुम जो है वो नील ओलॉफ नहीं हो। वेल सेड द आयरन मास्टर, हेसिटेटिंग अ लिटिल, इट वाज नॉट quite honest either. You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in this matter. और उसको जो है वो पुलिस की धमकी दे रहा है कि अब वो कहता है कि अब पुलिस ही इसके बारे में बात करेगी कि जो तुम यहाँ पर एक दूसरी आइडेंटिटी के साथ यहाँ पर मेरे सामने हो, अब इसके बारे में जो है तुमसे पुलिस ही शेरिफ ही बात करेगा। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक ऑन द टेबल विद हिज फिस्ट। और अब ट्रैम्प को जो है वो गुस्सा आ गया, उसने बड़ी ज़ोर की अपनी हाथ को जो है उस टेबल पे बहुत तेज़ की मारा और उसने आगे बोलना शुरू किया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड. This whole world is nothing but a big rat trap, and all the good things that are offered to you are nothing but cheese, rinds and bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself
may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap। और कहते हैं एकदम से फिर वही उसकी लाइफ की जो फ़िलॉसफी है कि पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है और ये सारी सुंदर चीज़ें जो है रिचेस जो है वो पोक और चीज़ बेट की तरह काम कर रही हैं, ऐसे ही जैसे मैं फंस गया हूँ एक दिन तुम भी जो है फंस जाओगे। और अगर शेरिफ से भी बात करोगे तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबको अट्रैक्ट करती हैं और हमें इस वर्ल्ड के ट्रैप में जो है फंसा देती हैं। और ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं हमारे को जो है अपने एक जाल में फंसा लेते हैं। जैसे कि एक चूहा चीज़ को अट्रैक्ट होकर जो है उस रैट ट्रैप में फंस जाता है, वैसे हम सब, और एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा कि जब तुम्हारे को कोई पोक का पीस अट्रैक्ट करेगा और तुम भी उस ट्रैप में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर began to laugh. That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, but leave the sheriff alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can। वो कहते हैं कि ठीक है तुम बड़ी अच्छी बातें कर रहे हो तो ठीक है अब तुम जाओ यहाँ से और शेरिफ को भी क्रिसमस खुद मनाने दो और तुम अपने रास्ते जाओ अब यहाँ से, बट अभी के अभी तुम चले जाओ। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that she went and closed the door। और उस एडला को बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा नहीं लगा कि वो वहाँ से जा रहा है, गेस्ट क्रिसमस ईव पे उनके घर से जा रहा है, और उसने रोका उसको। वो कह रही है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं पर रहो। अपने फादर को भी बोलती है, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, और फादर गुस्सा कर रहे हैं, क्या कर रही हो तुम। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड एंड हार्डली न्यू what to answer। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch। और उसको बहुत अंदर से खुशी लग रही थी कि चलो अब उसे पता है कि वो पुअर पर्सन है और उसका कोई भी उसके साथ क्रिसमस मनाने को नहीं है और उन दोनों के साथ भी और कोई क्रिसमस मनाने को नहीं था। तो क्रिश्चियंस जो हैं वो चैरिटी में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं और भगवान ने एक ऐसा पर्सन ही उनके घर में ले आया था जो कि जिसको ज़रूरत है। एंड शी वॉज़ हैप्पी, she was happy with this thing, and she was preparing all the dishes with lots of zeal। बहुत खुशी से जो है अच्छे अच्छे खाना उसने बनाया था और वो चाहती थी कि ये जो ट्रैम्प है वो खाए वो खाना और उनके साथ क्रिसमस मनाए। She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond। और वो नहीं चाह रही थी कि वो यहाँ से vagabond चला जाए। I am thinking of this stranger here, said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole world where he is welcome and can feel at home. Wherever he turns, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross-examined, and I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just वन इन द होल ईयर। वो कहते हैं पूरा साल ये इधर उधर भागता रहेगा और इस डर के मारे जिएगा, कभी उसको कोई क्रॉस एग्जामिन करेगा, कोई उसे धक्का देगा, उसको अरेस्ट कर लेगा। उसने कभी भी पूरा साल में पीस का जो है वो मोमेंट नहीं एंजॉय किया। बट मैं चाहती हूँ कि आज का दिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हो, रिलैक्स्ड हो, उसको कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो और वो क्रिसमस शांति से पीस से मना सके। द आयरन मास्टर मम्बल्ड something in his beard and he could not bring himself to oppose her। और वो कुछ तो मरमर किया, उसने अपने मन में बुड़बुड़ाया, बट उसने अपनी डॉटर की बात को डिनाई नहीं किया, अपोज नहीं किया। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer। अब वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि जिस इंसान को हमने जो है ज़बरदस्ती अपने घर में लेकर आए और उसको कहा कि तुम क्रिसमस यहाँ पर हमारे साथ मनाओगे और उसे अब धक्के देकर हम बाहर निकाल दें। हम ही उसे इतना इंसिस्ट कर इस घर में लेकर आए हैं, तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है उसको वो पीसफुल क्रिसमस सेलिब्रेशन देने का। यू डू प्रीच वर्स दैन अ पार्सन, सेड द आयरन मास्टर। कहते कि तुम तो बिल्कुल जो चर्च का फादर होता है उससे भी ज़्यादा प्रीचिंग जो है तुम्हारी ऊपर के लेवल की है। ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस। बस मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो तुम अच्छाई इस वेगाबॉन्ड की तरफ दिखा रही हो तुम्हें रिग्रेट ना करना पड़े।
फ्यूचर में. द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम up to the table. Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. The man with the rat traps said not a word. He only sat down and helped himself to the food time after time. And he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? अब वो उसको समझ नहीं आ रहा, बहुत ही कंफ्यूज था वो ट्रैम्प कि क्यों कोई किसी ख़राब पर्सन के लिए इतनी अच्छाई कैसे रख सकता है. उसे समझ नहीं आ रहा था कि एडला उसकी तरफ इतना अच्छा बिहेवियर क्यों रख रही है. वो उसका हाथ पकड़कर टेबल की तरफ उसे बैठाया और उसको बोला कि अब तुम बैठ जाओ और अच्छे से खाना खाओ उसी टेबल पे जिस टेबल पे वो लोग बैठ के खाना खा रहे हैं. तो कहते हैं कि क्रेज़ी है क्या ये, जिसको उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा अच्छाई क्यों हो रही है, जबकि अब इन्हें पता लग गया है कि मैं नील ज़ोलॉफ नहीं हूँ, मैं एक वैगाबॉन्ड हूँ, मैं एक ट्रैम्प हूँ, मैं एक थीफ हूँ, मैं एक बर्गलर हूँ. उसके बावजूद ये लड़की जो है, ये वुमेन जो है मेरी तरफ इतनी अच्छाई क्यों दिखा रही है. After that Christmas Eve at the Ramsjo passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. And at noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. But after that he slept again, and it seemed as though for many years he had not able to sleep as quietly and safely as here at Ramsjo. अब वो उस वैगाबॉन्ड ने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि उन लोगों को रिग्रेट हो, वो क्योंकि वो सारा दिन सिर्फ खाता रहा और सोता रहा. उसको ज़बरदस्ती उठा के खिलाया जाता और वो ऐसा सो रहा था जैसे लाइफ में अपनी पूरी ज़िंदगी की नींद जो है वो उस मोमेंट में अपनी जो है रिलैक्स नींद जो है वो सो रहा है. और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पीसफुल दिन था वो, कि वो इतनी पीस में कभी भी नहीं अपनी लाइफ में सोया था, क्योंकि आज उसको किसी का डर नहीं था, पकड़े जाने का डर नहीं था, क्रॉस एग्जामिनेशन का डर नहीं था, अरेस्ट होने का डर नहीं था, क्योंकि अब वो लोग उसकी सच्चाई जानते थे. इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड दे woke him up again, and he stood for a while in the drawing room blinking as though the candle light hurt him. But after that he disappeared again. 2 hours later he was aroused once again more, and he then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. As soon as they got up from the table, he went around to each one प्रेजेंट, सेड थैंक यू एंड गुड नाइट. अब पूरा दिन और रात तक भी उसका यही हाल था. वो लोग उसे जगाते थे, खिलाते थे और वो सो जाता था. तो शाम को भी जो कैंडल भी जली तो उसकी आंखों को चुभने वाली थी, वो बस थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ फिर सो गया. फिर उसे जगाया गया, उसको खाना खिलाया गया, पॉरिज खिलाया गया, फ़िश खिलाई गई और उसके बाद वो सबको थैंक यू करता हुआ, गुड नाइट करता हुआ फिर चला गया. बट व्हेन ही came to the young girl, he gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present, and he did not have to return it. And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcome back again. और वो कहती है कि ये सूट जो तुमने पहना है ये मेरे फादर चाह रहे हैं कि तुम अपने पास ही रखो एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, और अगले साल भी अगर तुम हमारे साथ क्रिसमस मनाने आना चाहते हो ऐसी जगह जहाँ पे पीस है, जहाँ पे तुम्हें कोई क्रॉस एग्जामिन नहीं करेगा, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एट our place and celebrate even the next Christmas here. The man with the rat traps did not answer anything to this, and he only stared at the young girl in boundless amazement. और वो कुछ नहीं बोल पा रहा था, कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि एक इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है. और वो इतनी ज़्यादा हम्बल, इतनी ज़्यादा पोलाइट थी, इतनी ज़्यादा कंपैशनेट थी कि उसको जो है ऐसे लग रहा था कि उसके अंदर कुछ बदलाव आ रहा है. द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन द गुड सीजन टू गो टू द अर्ली Christmas service. Their guest was still asleep and they did not disturb him. When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usually at church. She had learned that one of the old crofters of the iron works had been robbed by a man who went around selling rat traps. अब जो है अगले दिन जो है सुबह उसका फादर
एडला विल्मनसन अलॉन्ग विद हर फादर वेंट टू द चर्च और प्रेयर्स ऑफर करने के लिए, और वेगाबॉन्ड सो रहा था इसलिए उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। और वो 10 बजे जब वापस आ रहे थे तो उसको अंदर से बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी, और अपना सर जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुख से उसने अपना नीचे झुकाया हुआ था, क्योंकि वहाँ पर उन्हें पता लगा कि किसी ने क्रॉफ्टर के पैसे चुराए हैं, और वो रैट ट्रैप सेल करता है। तो उसे समझ आ गया कि जो ट्रैम जो वेगाबॉन्ड उनके घर में है उसने वो पैसे चुराए हैं। येस दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, और तुम, फादर उसे बोल रहे हैं, हाँ तुमने उसे अंदर आने दिया और रहने दिया। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। और वो सोचे जा रहा है कि, और अपनी डॉटर को कहता है पता नहीं कितने हमारे चांदी के चम्मच बचे होंगे घर पर। दी वैगन हैड हार्डली stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. He added that he had heard at church that the man was a thief. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Williamson was to be kind इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। और जब उसने घर के बाहर गाड़ी रोकी तो अंदर बड़ा भागता हुआ हड़फड़ाता हुआ जा रहा है, वॉले से पूछ रहा है कि वो स्ट्रेंजर जो है वो थीफ है, कहीं वो यहाँ से कुछ लेकर तो नहीं गया। और वाले कह रहा है कि नहीं नहीं वो कुछ भी लेकर नहीं गया है, चला गया है, बट वो एक मोमेंटो छोड़ के गया है, वो मिस विल्मनसन को देकर गया एज अ क्रिसमस गिफ्ट, और वो बहुत खुश होगा अगर वो उस प्रेजेंट को विल्मनसन जो है Miss Williamson जो है एक्सेप्ट कर ले। The young girl opened the package which was so badly done up that the contents came into view at once. She gave a little cry of joy. She found a small rat trap and in it lay 3 wrinkled 10 kroners note, but that was not all. In the rat trap lay also a letter written in large jagged characters। और विल्मनसन जो है, मिस विल्मनसन बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि वो प्रेजेंट जो है वो एक रैट ट्रैप था, और उसमें एक न्यूज़पेपर में वो 30 क्रॉनर्स जो हैं रखे हुए थे, और वो उसके लिए एक लेटर था, एक नोट भी था उस रैट ट्रैप ने। द ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव been so nice to me all day long as if I was a captain, I want to be nice to you in return as if I was a real captain, for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief, but you can give back the money to the old man on the roadside and who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in the world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. Written by friendship with high regards Captain Wanstele। अब जो है उस लेटर में लिखा था कि जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया मैं बहुत ही ऑनर्ड हूँ और तुम बहुत ही नोबल हो मिस, और मैं चाहता हूँ कि ये 30 क्रॉनर्स ये उस पर्सन के हैं जो कि नियर बाय रोड साइड पे रहता है, और उसने ये हैंग कर रखे हैं 30 क्रॉनर्स। हमारे जैसे पुअर वैगाबॉन्ड जो है या वॉन्डरर्स हैं वो जो है इस रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। पैसे को देखकर मेरा भी मन ललचा गया और मैं भी फंस गया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये पैसे जो है उस क्रॉफ्टर को वापस कर दो, और अगर मैं भी ऐसा नहीं बदल पाता, अगर अनटिल अनलेस मुझे ये अच्छाई जो तुमने मेरी तरफ दिखाई कि मेरे को तुमने रेज़ कर दिया एक रियल कैप्टन में, उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ, और मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रहा हूँ कि मैं जो है अब मैं जो है रियल कैप्टन बन गया। और उसने अपना साइन भी कैप्टन वॉन्स्टले करके जो है लिखा उस लेटर पे। सो विद दिस we come to the end of the chapter. Here are few extracts which you can do and some extra questions which you can solve in your notebooks. Let's go through a little bit of synopsis. The story begins with a fairy tale. The central character is a beggar and a petty thief who goes about selling rat traps wire to make a small living, and he finds it difficult to make both ends meet. It makes him reflect about his own condition and the world at large, and he fancies that the whole world is nothing but a big rat trap. It offers a rich and varied baits to people
who bite on them and get trapped in the rat trap. Or the storyline unfolds gradually with the various baits being offered to the beggar. The old man that the tramp meets is generous with his hospitality, but the bait of the three 10 kroner bills is enough to tempt him. Next, at the Ramsjo works, while seeking shelter for the night, the tramp bites the bait offered to him by the owner, the ironmaster of mistaken identity. Then Edla, ironmaster's daughter, offers yet another bait of full-hearted generosity, comfortable living, and a magically peaceful Christmas for the tramp. And let's conclude. Finally, the bitter truth dawns on the host. Edla is downcast when she learns that the peddler is a thief. The tramp undergoes a change of heart after experiencing her kindness. He returns the stolen money and writes a letter to her thanking her for helping him escape the rat trap, and he attains nobility of spirit and becomes Captain Bonsteady. The story ends with the victory of human goodness. So, here are some main points which you can go through and just quickly revise the chapter, and these are few bullet points which are covering all the chapter, and the theme of the chapter is basically that you can transform a human being, a bad human being, into a good human being just by showing goodness, a little bit of kindness towards them. And here's a quick roadmap of the chapter, the rat trap. The whole world, the theme is like, okay, the whole world is a rat trap, and it is metaphorical. Then here this is not Sahib Alam, there is a mistake, it is a tramp, lonely, poor, hungry vagabond, thankless, and theory of the world is a rat trap, and the rat trap seller, beggar, thief, cheats the crofter, thankless to blacksmith and apprentice, thinks all good things are baits, and thankful to Edla and gets transformed. The iron master, then Edla, then the crofter. So, here you can go through this roadmap. There is one mistake, typing mistake, that it is not Sahib Alam, it is the tramp. And this story teaches us a very good lesson, that by our kindness and goodness we can totally transform a bad human being to a good human being. Thank you so much for listening to this explanation so patiently. God bless.